أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التمس الرزق بالنكاح صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی. ایسے ہی بناتے رہو عدیل. اس کو ذرا کم کیجیے. عدیل یہ لو پکڑو مارے ادھر. پھر درود شریف ایسے ہی بناتے رہنا ٹھیک ہے نا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. کام تو زندہ کے کیے اور امید گلزار. تیری مت پہ کیسی مار ہے کیا ہونا ہے. محترم حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں مختصراً اپنے موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بالخصوص جہیز کا مسئلہ، اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا آپ سے، کیونکہ شادی میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کے کمر کو توڑتی ہے وہ جہیز ہے. وہ لین دین کا معاملہ ہے جو کہ انسان کو اپنے تمام تر وقار کے ساتھ حساب گیتی پر جب ان کے پاس اولاد جیسی نعمت آتی ہے اور جب پروان چڑھ کر منزل بلوغیت کو عبور کرتی ہے اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہر انسان، ہر باپ، ہر ماں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شادی کریں تو کس طرح کریں، انتظام کس طرح کیا جائے. میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہماری قوم کے افراد نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے گھروں میں رفتہ رفتہ جگہ دے کر اپنے قلوب اذہان کو اس طریقے سے ان برے رسم و رواج سے پراگندہ کر دیا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جہیز جیسی ملعون و مطمون شے کے بھاری بھرکم پاؤں کے نیچے دب کر ہماری بہنیں کہیں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر پہنچ رہی ہے تو کہیں خود اپنے بستروں پر رات کی تنہائی میں کروٹیں لے لے کر اور آنسوؤں کے قطرات کو اپنی آنکھوں سے گرا گرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کہیں غریب باپ اپنے آپ کو اپنے گھر پر اور اپنی اولاد کی جوانی پر اپنے آپ کو بےکس و مجبور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل شرع اور اصول شرع سے بالکل خالی ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. ہماری قوم شریعت کے راستے سے اتنی دور ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ ہماری قوم کے افرادوں کے نگاہوں کے اندر صرف ایک بات بسی ہوئی ہے، دولت خیر دولت، شہرت خیر شہرت،
दौलतों के अंबार इंसान अपने कदमों में लाना चाहता है और इज्जतों की का मुतलाशी इंसान जब दुनिया गेती पर अपने आप को टहलता फिरता हुआ नजर आता है तो दौलतों का लेबल अगर उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो चंद वो अफराद जो उनके किस्सा गो हुआ करते हैं, चंद वो अफराद जिनसे उनका ताल्लुक हुआ करता है, जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें पहचानते हैं, उन्हीं दौलतों की वजह से जो उनके नाम के साथ चस्पा हुआ है या उनके मकान के साथ चस्पा हुआ है या उनके पास कुछ दौलतें आ गई है, उनकी वजह से उसकी इज्जतें की जाती है। और जो सही मानों में इज्जत के लायक होता है, जो सही मानों में इज्जत के काबिल होता है, हमारी कौम और हमारे कौम के वो अफराद उन हजरात को बिल्कुल नीची निगाहों से देखते हैं और नतीजा ये होता है जब उनकी औलादें मंजिल बुलूगियत को अबूर करती है, अब रिश्ते निकाह लेने के लिए जब वो दर दर की ठोकरें खाता है, यही कौम का जियालु इंसान उनको घास तक, जिसे हम अपने भाषा में कहा जाता है घास तक ना डालना, उसकी तरफ निगाह इल्तिफात से भी ये लोग नहीं देखते हैं और कहते हैं जाने दो, ये गरीब है, ये मुफलिस है, ये नादार है, ये नाचार है, ये मजबूर है, इसे कौन अपनी बेटी को निकाह में देगा, कौन इसे कौन इसकी बेटी को अपने निकाह में लेगा, नहीं, इसके घर में रिश्ता निकाह नहीं करना है। ऐ मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस में मैं चूँकि तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर का वक्त दिया गया है, इसीलिए मैं अब कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करता हूँ और गौर से सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, डरो अपने उस रब से जिसने तुझको एक जान से पैदा फरमाया है। ऐ मिल्लत इस्लामिया के शहज़ादों, ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी रूए ज़मीन के इंसानियत के लिए है, चाहे वो इंसान कुछ भी हो अकायद के एतबार से, लेकिन ये जो मफ़हूम कुरान है, ये जो कुरान का बयान है, ये उसलूबे अंदाज है, ये तमाम इंसानियत के लिए है कि सुनो, तुम इंसान हो ना, तुम इंसान हो, अगर इंसान हो तो आपस में भाई भाई हो। बताओ, कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अपने उस रब से डरो जिसने तुझको एक जान से पैदा किया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हम और आप एक रिश्ता जो हमारा और आपके दरमियान, अगरचे मैं कहीं का रहने वाला हूँ, अगरचे मेरे माँ बाप कोई और हैं, अगरचे आप कहीं के रहने वाले हो, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता जो है वो इंसानियत के एतबार से, बाएतबार इंसानियत आपस में भाई भाई का रिश्ता है। जब आप हमें भाई भाई तस्लीम कर लेंगे तो खूंरेज़ियाँ बंद हो जाएगी। जब भाई भाई तस्लीम करेंगे तो नफरतों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हसद व बुग़्ज़ व कीना का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हसरत व नफरत का दरवाजा बंद हो जाएगा। और जब आपने पहली ही मंजिल में आकर मुझे इनकार कर दिया, नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम इंसान के लायक भी नहीं हो, हमारी इंसानियत को भी आपने नहीं पहचाना, नतीजा ये हुआ यहीं तक महदूद नहीं है। एक तो हमारा रिश्ता आपस में यह है कि हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, और कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई भाई है। तो रिश्ता इस्लाम की वजह से भी, रिश्ता ईमान की वजह से भी हम एक दूसरे के भाई भाई हो गए। बताएं हमारा रिश्ता आपस में कितना मजबूत है, बताएं कितना मजबूत है। हमें एक कड़ी में किस चीज ने जोड़ा है, तो आपको कहना पड़ेगा कोई और चीज नहीं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ताकत है और वो कड़ी है जिससे हम जुड़ गए हैं। तो एक रिश्ता इंसानियत की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे के भाई बहन कहलाते थे, और अब रिश्ता इस्लाम की बुनियाद पर हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया है, हमारा रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया है। इसी रिश्ते इस्लाम से और जुड़ने की वजह से हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन भी हुए हैं। बताइए, हमारे दो रास्तों से, दो तरीकों से एक रिश्ता इंसानियत पे एतबार इंसानियत एक दूसरे के भाई बहन हुए, और एक रिश्ता इस्लाम की वजह से हम एक दूसरे के भाई बहन हुए। आज जिस बच्ची का या जिस बच्चे का निकाह होने, कल जिस बच्चे का निकाह होगा, जिसके लिए मजलिसें सजाई गई हैं, जिसके लिए ये राहनाइयाँ रचाई गई हैं, जिसके लिए ये मंजरनामे पेश किए गए हैं, जिनके लिए हम और आप आए हैं, जिनकी बरकत के लिए महफिल पाक सजाई गई है, आज साहिबे घर जिस लड़की के घर अपना रिश्ता लेकर जा रहे हैं, क्या हम लोगों ने इस चीज को भुला नहीं दिया है कि वो हमारी बहन है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटा है? हमने इन चीज को भुला दिया है कि नहीं भुला दिया है? हम जब भी रिश्ता लेकर जाते हैं तो फलां इब्ने फलां के पास लेकर जाते हैं, फलां के गाँव में लेकर जाते हैं, फलां के घर पर लेकर जाते हैं,
फलां के पास लेकर जाते हैं, हम ये कहकर नहीं जाते हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं, हम अपने भाई के पास जा रहे हैं, हमारा रिश्ता अपने भाई के घर में जुड़ रहा है। जब हम और आप एक दूसरे को भाई तस्लीम नहीं किए, जब इसी मंजिल पर आकर हमने खता किया है, नतीजा देखो जब रिश्तेदारियां हो जाती हैं तो ये भाइयों के अंदर दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। हालांकि रिश्तेदारी भाइयों के अंदर दूरियां पैदा करने के लिए नहीं की जाती है।